Assalamu alaikum and welcome to all the students of class 10th. I hope you all are fine by the grace of Allah. This is lecture number 14 and the topic is exercise of unit 3. As you know, unit 3 is a poem and the title of the poem is Dreams. As we are about to solve the exercise questions, so open your books at page number 24. There you can see question B. Write the correct option in following statements. Options are given to you and you have to choose the right one. For example, the first one is the phrase hold fast to dreams means. Option A, don't do anything, just dream day and night. Option B, daydreaming is good for health. Option C, dreaming will make your holding power strong. Option D, stick fast to your ambition in life. And the right option is option D, stick fast to your ambition in life. Next one is in the line, life is a broken winged bird. The poet uses the technique of dash. Option A, metaphor. Option B, personification. Option C, simile. And option D, repetition. And the right one is option A, metaphor. Because here a direct comparison is made between life and broken winged bird without using words as, like, etc. Next one, life is a barren field. In this line, the phrase a barren field is dash. Option A, simile. Option B, metaphor. Option C, personification. Option D, alliteration. And the right one is option B, metaphor. Next, according to the poet, life without dream is dash. Option A, hollow and bleak. Option B, lush and hopeful. Option C, dynamic and productive. And option D, passionate and optimistic. And the right one is option A, hollow and bleak. Next, according to dreams, what will happen if our dreams die? Option A, life will be easier to handle. Option B, life will appear as it is. Option C, life will continue as normal. Option D, life will be hopeless. And the right option is option D, life will be hopeless. Now, look at page number 26. There you can see grammar part question, transitive and intransitive verbs. I must tell you what is transitive and what is intransitive verb. Transitive verb is basically a verb used with an object. And the object to act upon must be direct. वो object जिस पे काम किया जाएगा should be direct. And object can be a noun, it can be a pronoun, or it can be a phrase. For example, she helped me. In this example, helped is transitive verb and me is a pronoun. So you can easily understand that if a pronoun is used after verb, it can be a transitive verb. Next, he attached charger to mobile. Here, charger is a noun and it is used after attached, which is a verb. So you can easily understand that this is a transitive verb. And what is intransitive verb? Intransitive verb does not have an object, so it does not act upon anything, and it may be followed by adjective, adverb और preposition. मतलब जो intransitive verb होगा उसके बाद adjective भी यूज़ हो सकता है, adverb भी यूज़ हो सकता है और preposition भी यूज़ हो सकती है. For example, she laughed heartily. अब laughed क्या है यहाँ पे? Intransitive verb है, because after that heartily, which is an adverb is used here. Next, he played in the ground. Played is intransitive verb because after that in is used, which is a preposition. So you can easily understand that played is intransitive verb. Now look at page number 26 of your textbook. The question A, do as directed. First one is choose the sentence that does not have an intransitive verb. अब यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा घुमा फिरा के है, मतलब यहाँ पे आपने वो बताना है जिसमें इंट्रांजिटिव वर्ब ना हो. मतलब आपने ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे बताना होगा, ठीक है. ट्रांजिटिव वर्ब यहाँ पे कौन सा है? ऑप्शन ए, आई जॉग. ऑप्शन बी, द चाइल्ड गर्गल्स. ऑप्शन सी, आई वॉच्ड अ मूवी. एंड ऑप्शन डी, शी सॉब्स. जॉग कहते हैं सैर करने को. द चाइल्ड गर्गल कहते हैं बच्चे का बातें करना जो होता है, वो छोटी छोटी बातें करना, ठीक है. और सॉब्स कहते हैं सिसकने को. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो राइट ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, आई वॉच्ड अ मूवी. अब मूवी क्या है? ये मूवी नाउन है, तो इस लिहाज से आप इजीली समझ पाएंगे कि ये वॉच्ड के बाद
मूवी अगर यूज़ हो रही है, एक नाउन यूज़ हो रहा है, तो फिर ये क्या हुआ, वॉच्ड क्या हुआ, ये ट्रांजिटिव वर्ब हुआ. सो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी, आई वॉच्ड अ मूवी. नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव अ ट्रांजिटिव वर्ब. यहाँ पे आपने इंट्रांजिटिव वर्ब बताना है. ऑप्शन ए, ही प्रेजेंटेड अ बुके. ऑप्शन बी, he waved his arm. Option C, she understood my question. And option D, she laughed heartily. Here the right option is option D, she laughed heartily, because heartily is an adverb, so you can easily understand that this is an intransitive verb. Next, choose a sentence that does not have a transitive verb. यहाँ पे आपने intransitive verb ही बताना है, ठीक है. First, who showed her the flower vase. Option B, the grocery is selling vegetables. Option C, the birds are flying. Option D, the coach advised me to practice daily. Here the right option is option C, the birds are flying, because flying is a main verb and main verb के साथ कोई भी यूज़ नहीं हो रहा हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है. नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन intransitive verb. यहाँ पे आपने ट्रांजिटिव वर्ब बताना है. Option A, the customer is buying this afternoon. Option B, the customer is buying pancakes. Option C, they were crying all day long. And option D, she helped me. And the right option is option D, she helped me. क्योंकि help क्या है, ये main verb हो गया और इसके साथ me यूज़ हुआ है, तो me क्या हुआ, ये pronoun हो गया. तो easily आप understand कर पाएंगे कि ये transitive verb है, ठीक है. Next, choose the sentence that does not have a transitive verb. Option A, she cut the cake. Option B, they climbed the hill. Option C, Arman telephoned Tariq. And option D, Asma shouted in the class. अच्छा, इनमें से आपने intransitive verb बताना है. तो intransitive verb कौन सा हुआ, ऑप्शन डी, आसमा shouted in the class, क्योंकि shouted मेन वर्ब हो गया और इसके साथ इन यूज़ हुआ है इसके बाद, यानी कि तो इन क्या है, ये प्रीपोजिशन है, तो आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है. नेक्स्ट, चूज द सेंटेंस दैट डज नॉट हैव एन intransitive verb. यहाँ पे आपने ट्रांजिटिव वर्ब बताने, ठीक है. फर्स्ट, द स्टूडेंट इज आंसरिंग क्वेश्चंस. ऑप्शन बी, अकबर इज जॉगिंग एट दिस मोमेंट. ऑप्शन सी, शी स्लीप्स टू मच. एंड ऑप्शन डी, ही कंप्लेन्स फ्रीक्वेंटली. अब यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब बताना है, तो यहाँ पे ट्रांजिटिव वर्ब कौन सा हुआ, ऑप्शन ए, द स्टूडेंट इज आंसरिंग क्वेश्चंस, क्योंकि आंसरिंग मेन वर्ब हो गया और इसके साथ क्वेश्चंस क्या है, ये नाउन है. तो नाउन किसके साथ यूज़ होता है, ट्रांजिटिव वर्ब के साथ, तो ये फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन. नेक्स्ट, क्वेश्चन बी, पिक आउट 5 ट्रांजिटिव एंड 5 intransitive verbs फ्रॉम द स्टोरी द चैम्पियंस. अब यहाँ पे जो पिछला चैप्टर आपका गुजर चुका है, द चैम्पियंस चैप्टर 2, you have to find 5 examples of transitive verb and 5 examples of intransitive verbs. You have to do it by your own self. Next, present participle or past participle. Now you will think you can easily understand that word is present participle. Present participle is the form of verb ending in ing, which is used in making continuous tenses. ing फॉर्म होती है वर्ब की और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंसेस यूज़ करने के लिए होती है. एज अ वर्ब भी यूज़ हो सकती है, एज ए नाउन भी यूज़ होती है और ये एज ए एडजेक्टिव भी यूज़ होती है, ठीक है. एज एडजेक्टिव कैसे यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल इन रनिंग वाटर. रनिंग वाटर बहता हुआ पानी, तो ये क्या हुआ, ये एडजेक्टिव हो गया. एज ए नाउन कैसे यूज़ होती है, फॉर एग्जांपल इन गुड थिंकिंग, अच्छी सोच में, इन गुड थिंकिंग. अब थिंकिंग क्या है, ये एज ए नाउन यूज़ हो रहा है यहाँ पे. और एज अ वर्ब कैसे, आई एम थिंकिंग, मैं सोच रही हूँ. थिंकिंग क्या है यहाँ पे, एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है, ठीक है. और पास्ट पार्टिसिपल क्या है, पास्ट पार्टिसिपल इज अ फॉर्म ऑफ वर्ब एंडिंग इन ed, विच इज़ यूज्ड इन फॉर्मिंग परफेक्ट एंड पैसिव टेंसेज. अब वर्ब की वो फॉर्म जिसमें ed यूज़ होता है और ये परफेक्ट टेंसेज यूज़ करने के लिए और पैसिव टेंसेज में यूज़ करने के लिए होती है, ठीक है. अब क्वेश्चन है आपकी बुक में, राइट द वर्ब इन पैरेंथेसिस इन द करेक्ट फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल.
अब यहाँ पे आपको ब्रैकेट में दिया गया है वर्ब और उसको आपने प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करना है अकॉर्डिंग टू दी सेंटेंस. फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन इज डैश बाय द बेस्ट कुक इन टाउन. द मील वॉज शेयर पोइट्री. And the word in bracket is prepare. Here you have to change it into past participle, so you will write prepared ed form. ठीक है. Next, after dash all day her head was aching in the evening. aching 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 कहते हैं दर्द करना. ठीक है. The word in parenthesis is study and you will write here present participle form ing form after studying all day. ठीक है. Next, dash on the sofa they were watching TV. The word in bracket is lie and you have to change it into present participle form. Present participle form. Lying on the sofa they were watching TV. Next, everybody was dash to hear the news. Here the word in parenthesis is shock and you have to change it into past participle. Shocked. Everybody was shocked. Next, before the house I always check if all lights are switched off. Here the word in bracket is leave and you have to change it into present participle. So before leaving the house. ठीक है. Next question, combine the following pairs of sentences by using participle present or past. The first one has been done. For example, the one option 1 is we met a boy, he was carrying a heavy bag, and you have to change it into present participle according to the tense. We met a boy carrying a heavy bag. अब फर्स्ट आप एग्जाम्पल देखें तो ही वॉज. अब इसमें सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को रिमूव कर दिया गया है और जस्ट कैरिंग को अटैच कर दिया गया है फर्स्ट क्लॉज के साथ. ठीक है. सेकेंड वन, द हाउस वॉज डेकोरेटेड विद लाइट्स इट लुक्ड ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे इन दोनों क्लॉजेज को हमने कंबाइन करना है. तो कैसे कंबाइन करेंगे? अब इट यहाँ पे रिमूव हो जाएगा और थोड़ी सी इसकी सीक्वेंस भी चेंज होगा सेंटेंस का. फॉर एग्जाम्पल द हाउस डेकोरेटेड विद लाइट्स लुक्ड ब्यूटीफुल. अब यहाँ पे इट जो सब्जेक्ट है उसको भी हमने रिमूव किया और वॉज जो कि हेल्पिंग वर्ब है उसको भी हमने रिमूव कर दिया. तो क्या बना? द हाउस डेकोरेटेड विद लाइट्स लुक्ड ब्यूटीफुल. नेक्स्ट, द रॉबर्स सा द पुलिसमैन दे रैन अवे. नाउ वी कैन चेंज इट इन सीइंग द पुलिसमैन द रॉबर्स रैन अवे. ठीक है. Next, I found the door open. I went inside. अब इसको कैसे चेंज करेंगे? Finding the door opened. I went inside. ठीक है. Next, the police saw the body. It was floating down the river. अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? The police saw the body floating down the river. इट वॉज जो था उसको हमने रिमूव कर दिया इसमें. ठीक है. नाउ लुक एट पेज नंबर 28. दिस इज आल्सो ग्रामर पार्ट. क्लॉजेज एंड इट्स टाइप्स आर गिवन. नाउ आई मस्ट टेल यू व्हाट इज अ क्लॉज. क्लॉज इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing a subject and predicate. Predicate means combination of verb and additional information which tells us about subject. predicate क्या होता है? ये verb होता है और कोई भी उसके साथ additional information होती है जो कि subject के बारे में हमें कुछ बताया गया होता है. ठीक है. अब आगे इसकी clauses की 3 types आ जाती हैं. ठीक है. clauses have 3 types: main clause, subordinate clause and relative clause. Main clause is the clause which follows the pattern of subject, verb and object. Sometimes it can be a subject and verb, but most of the time it can be subject, verb and object. It can be called an independent clause.
because it does not need any other clause or sentence to give a complete sense. ठीक है, main clause gives a complete thought or complete sense. For example, lazy students always complain. अब इस सेंटेंस में देखा जाए तो ये मेन क्लॉज इसको कहा जा सकता है, क्योंकि इसके साथ कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायर्ड है ही नहीं, ये मीनिंग अपना पूरी तरह से दे रहा है. ठीक है, अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होते हैं? सबऑर्डिनेट क्लॉज follows the pattern of subordinate conjunction, then subject and then verb. स्टार्ट किससे होता है? सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से. और सबऑर्डिनेट क्लॉज ये डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है, क्योंकि ये अपना कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा होता, इनकम्प्लीट थॉट या इनकम्प्लीट सेंस दे रहा होता है. तो इस वजह से ये डिपेंडेंट क्लॉज कहा जाता है. इसको कंप्लीट सेंस देने के लिए किसी और क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है, साथ मेन क्लॉज की ज़रूरत पड़ती है. अलग से मीनिंग मुकम्मल नहीं देगा जब तक इसके साथ मेन क्लॉज ना लगाए जाए. और कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस. फॉर एग्जांपल एज, इफ़, बिकॉज, व्हेन, व्हाइल, व्हेनेवर. इसके अलावा भी और काफ़ी सारी हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम ये ज़्यादा यूज़ की जाती है. ठीक है, अब सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस कौन सी होती हैं? जो एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन करने के लिए यूज़ की जाती हैं. ठीक है, अब ये डिपेंडेंट क्लॉज होता है ना सबऑर्डिनेट क्लॉज, और मेन क्लॉज क्या होता है? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो अगर सबऑर्डिनेट क्लॉज और मेन क्लॉज को हमने ज्वाइन करना है तो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हम यूज़ करेंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, वेन एवर लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन. जब कभी सुस्त स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं. अब इस सेंटेंस को आप देखें तो क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं. कंप्लीट सेंस ये तभी देगा जब इसके साथ मेन क्लॉज जुड़ा होगा. और मेन क्लॉज कैसे जोड़ेंगे ये थोड़ा आगे चल के हम बताएंगे. ठीक है, अब हम रिलेटिव क्लॉज को डिस्कस कर लेते हैं. व्हाट इज़ रिलेटिव क्लॉज? रिलेटिव क्लॉज बेसिकली follows the pattern of relative pronoun or relative proverb, relative adverb. Sorry, it follows the pattern of relative pronoun or relative adverb, then subject and then verb. या तो ये पैटर्न होगा इसका, या फिर होगा relative pronoun which act like subject and then verb. ठीक है, it is also an incomplete थॉट गिविंग क्लॉज. इनकम्प्लीट थॉट देने वाला ये क्लॉज होगा, क्योंकि ये भी डिपेंडेंट क्लॉज होता है. अलग मीनिंग ये नहीं देता जब तक इसके साथ मेन क्लॉज ना जोड़ा जाए. और रिलेटिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? फॉर एग्जांपल हु, हुज, हुम, विच, दैट. रिलेटिव होता क्या है? रिलेट से निकला है ना वर्ड. रिलेट कहते हैं मेक कनेक्शन. अब मेक कनेक्शन कैसे है? ये प्रोनाउन के ऐसे प्रोनाउंस जो कि दो चीज़ों के दरमियान कनेक्शन बना रहे होते हैं. जैसे हम कहते हैं ना ये चीज़ मेरी है, या ये चीज़ उसकी है, या ये चीज़ किसकी है? हुज, हु, हुम, विच, दैट. ठीक है, अब रिलेटिव एडवर्ब कौन से होते हैं? एडवर्ब क्या होता है? जो वर्ब के बाद वर्ब को मॉडिफाई कर होता है. विच टेल्स अस अबाउट द टाइम ऑफ एक्शन, प्लेस ऑफ एक्शन, हाउ द वर्क इज़ डन, एट्सेट्रा. तो अब यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब क्या हुआ? व्हेन, वेयर, वाई. व्हेन द एक्शन इज परफॉर्म्ड, वेयर द एक्शन इज परफॉर्म्ड, वाई द एक्शन इज परफॉर्म्ड. ये सारी चीज़ें उसमें आ जाती हैं. तो रिलेटिव एडवर्ब ये होंगे. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हु लव्स मिल्क. अब हु क्या है यहाँ पे? रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे. और लव्स क्या है यहाँ पे? ये वर्ब हो गया. और मिल्क क्या है यहाँ पे? ये ऑब्जेक्ट हो गया. ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई. अब आप देखें अगर अपने पेज पर, एट पेज नंबर 30 of your textbook, read these sentences and decide if the bold words form a dependent, independent or relative clause. But I think before that I must tell you how who can make a meaningful sentence. A meaningful sentence can be made by joining main clause to subordinate clause or by joining main clause to relative clause. For example, main clause is
द फर्स्ट वन इज़ लेजी स्टूडेंट्स ऑलवेज कंप्लेन एंड द सेकेंड वन इज़ माई कैट लव्स मिल्क। अब ये मेन क्लॉज हैं, ये पूरा सेंस दे रहे हैं, इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं, ठीक है, मीनिंगफुल सेंटेंसेज हैं। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होगा? वेन एवर लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन। अब वेन एवर क्या है यहाँ पे? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है। तो ये आप क्या समझ पाएंगे? वेन एवर लेजी स्टूडेंट्स कंप्लेन, ये पूरा क्लास जो हो गया ये सबऑर्डिनेट क्लास हो गया। अब इसके साथ पूरा मीनिंग देने के लिए कुछ और भी हम यूज़ करेंगे तभी समझ आएगी। टीचर थ्रोस चॉक इरेजर एट देयर हेड्स। अब पूरे सेंटेंस अब ये हम पढ़ेंगे तभी हमें पूरा मीनिंगफुल सेंटेंस समय शो होगा ये, ठीक है। नेक्स्ट, बिकॉज माई कैट लव्स मिल्क। अब ये वाला क्लॉज क्या हो गया? ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है, बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है, तो ये मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है जब तक इसके साथ नेक्स्ट कुछ और इन्फॉर्मेशन ना दी जाए। शी नेवर कैचेज रैट। अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस है। तो मीनिंगफुल सेंटेंस मतलब मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज को ज्वाइन किया हमने, तो अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है, ठीक है। अब रिलेटिव क्लॉज क्या है, मतलब कैसे बनेगा मीनिंगफुल सेंटेंस? द लेजी स्टूडेंट्स whom teacher hit in the head with chalk eraser soon learned a lesson to keep their complaints to themselves. अब यहाँ पे ये अंडरलाइन जो क्लॉज नज़र आ रहा है, होम टीचर हिट इन द हेड विद चॉक इरेजर, ये रिलेटिव क्लॉज से स्टार्ट हो रहा है सॉरी, ये रिलेटिव क्लॉज है। अब होम क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट हो रहा है, तो ये पूरा क्लॉज क्या हुआ? मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसके साथ बाकी इन्फॉर्मेशन हमने यूज़ कर दी है, मेन क्लॉज यूज़ कर दिया है, तो अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस बन रहा है। नेक्स्ट, माई कैट हु लव्स मिल्क ब्रिंग्स इट अंडर द किचन टेबल वेयर शी enjoys इट। अब हु लव्स मिल्क क्या है? ये रिलेटिव क्लॉज है, और हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। और नेक्स्ट आप आगे देखें तो वेयर शी enjoys इट, वेयर क्या है? ये रिलेटिव एडवर्ब है। अब ये दोनों रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन से स्टार्ट होने वाली जो क्लासेस है अलग मीनिंग नहीं दे रहे, लेकिन जब तक इसके साथ दूसरा सेंटेंस हम यूज़ कर रहे हैं तो अब ये मीनिंगफुल सेंटेंस मीनिंगफुल सेंस देगा, ठीक है। नाउ लुक एट पेज नंबर 30 of your textbook. Read the sentences and decide if the bold words form a dependent, independent or relative clause. फर्स्ट वन इज ताहिर डिड हिज होमवर्क बिफोर ही वेंट टू बेड। अब यहाँ पे बोल्ड वर्ड यानी कलरफुल जो सेंटेंस है कौन सा है? ताहिर डिड हिज होमवर्क। अब ये क्या हुआ? ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ठीक है, ये अलग मीनिंग अपना दे रहा है। नेक्स्ट, इजंट दैट द वुमेन हु लिव्स अक्रॉस द रोड फ्रॉम यू। अब द वुमेन हु लिव्स, अब ये क्या हुआ है? रिलेटिव प्रोनाउन इसमें यूज़ हुआ है हु, तो ये समझें आप, ये रिलेटिव क्लॉज है। नेक्स्ट, बिकॉज द टेस्ट वॉज सो डिफ़िकल्ट नन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ वेरी गुड ग्रेड। अब यहाँ पे नन ऑफ द स्टूडेंट्स गॉट अ वेरी गुड ग्रेड, अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, अलग मीनिंग अपना दे रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज़ वेरी फिट बिकॉज शी गोज़ रनिंग एवरी डे। अब बिकॉज से स्टार्ट हो रहा है सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से, तो ये क्या हुआ? डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, द पुलिस सेड द एक्सीडेंट दैट हैपेंड लास्ट नाइट वाज अनअवॉइडेबल। अब दैट क्या है यहाँ पे? ये रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ये फिर क्या हुआ? रिलेटिव क्लॉज हो गया। नेक्स्ट, आई डोंट लाइक मंडेज। अब ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया, मीनिंगफुल सेंटेंस है। हैव यू सीन दोज पीपल हुम, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आपकी बुक में मिस्टेक है, यहाँ पे हु नहीं होना चाहिए, हुम होना चाहिए, WOHM। दोज पीपल हुम हुई मेट ऑन हॉलीडे। अब ये होम से स्टार्ट हो रहा है, तो ये रिलेटिव प्रोनाउन हो गया, तो ये फिर रिलेटिव क्लॉज है पूरा ये क्लॉज, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टेल मी वाई यू सेड दैट। अब यहाँ पे कैन यू टेल मी, ये कौन सा है? इंडिपेंडेंट क्लॉज है। नेक्स्ट, you shouldn't believe everything that you read in the newspaper. अब everything that you read, अब यहाँ पे that यूज़ हुआ है, मतलब relative pronoun यूज़ हुआ है, तो ये क्या हुआ? relative clause हो गया। the last one, if you help me I'll help you। अब ये क्या है? dependent clause हो गया, if you help me, क्योंकि ये if से स्टार्ट हो रहे, और if क्या है? subordinate conjunction है।
So students, here exercise of unit 3 ends. I try to simplify every topic so you can easily understand, and rest of the effort is up to you. Give quality time to your studies. Until our next class, take care of yourself. Allah Hafiz.